Good morning, everyone, and welcome back to the class after a long gap. Hope you all must have enjoyed your summer vacation, and now it's time to resume our studies. And as we all know that the whole world is facing this situation of pandemic, and that is the reason you are not attending the schools. You are we are teaching you through these videos and online classes, so we will be continuing with these things only. And when our summer vacations started, at that time we were doing chapter 2 in civics. The name of the chapter is diversity and discrimination, so we will continue with that chapter only. In the first chapter you have learned about diversity. What do you mean, what do we mean by diversity? क्या मतलब होता है diversity का? We have discussed about it, and we have seen that the differences in our religion, the differences in our cultural background, the differences in our languages are the reason for diversity. We all are different from each other. We all are different, not only our physical appearance or our mental ability, but we are different from each other in other aspects also. Like we speak different language, we follow different traditions, we follow different cultures, we follow different religions, and these are the aspects of diversity. When we are talking about diversity, we are not talking about the difference in the physical appearance of the people. We are not talking about the difference in the mental ability of the people. We are not talking about the difference in the economic status of the people. Some are rich, some are poor. As we have discussed, this is not diversity. अगर inequality है सोसाइटी में, some are rich, some are poor, तो this is not diversity, this is inequality. And one more inequality was discussed in the previous chapter about caste inequality, है ना? So we have you must have understood the meaning of diversity. Diversity का ये मतलब होता है जब हमारे language, culture, religion, traditions different होते हैं, तो वो उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं. एंड आवर कंट्री इज अ कंट्री विच इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, एंड इन दिस डाइवर्सिटी वी हैव मेंटेन्ड आवर यूनिटी also. The reason for diversity is there are some historical factors, some geographical factors which we have discussed in the previous class. Like we have discussed about two reasons, Kerala and Ladakh, and we have seen how historical and geographical factors are responsible for diversity. How historical and geographical reasons, how historical and geographical factors are responsible for developing a particular type of life, particular type of tradition, particular type of culture in a particular region. So this is diversity which we experience in our country. There are so many historical influences, the different traders, the Arab traders, the Jews, the Christians, all came in our country for the purpose of trading, and many of them settled. And this is the most important historical factor which is responsible for diversity in our country, isn't it? And then we have also seen that geography has also a lot to do with this diversity, because if you are living in a mountainous region, then the life in a mountainous region will be completely different from that region which is a coastal region, because of geography. So these are the factors, historical and geographical factors are the reason for diversity. We have discussed all these things, and we have also seen that how, in spite of being diverse, we all are one as an Indian. And the example of this oneness is our freedom struggle. We fought together against the British rule. We have talked about the Jallianwala Bagh massacre.
है ना. And we have also seen how national anthem, what is our national anthem and how it describes the unity of the country. And we have also discussed about the book written by Pandit Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru. The name of the book is Discovery of India, and in this book Pandit Nehru has coined this term, unity and diversity. We are diverse, but still we are one. And this unity is not something which is imposed from outside. We are one from inside, है ना. So we have discussed all these things. So you all are very much aware of the meaning of diversity. And now in the next chapter we are discussing how this diversity leads to discrimination. Okay, हम diversity को जान चुके हैं, and we are also knowing one more thing is there कि what are the benefits of diversity. हम अगर एक diverse society में रहते हैं तो उसका क्या benefit है. As we have discussed, if we are living in a diverse society, then we will be able to celebrate different type of festivals. We will be able to taste different types of food, different types of clothes, because diversity is there. Not only this, diversity is also responsible for enriching our imagination power. If we live in a diverse society, then it leads to enrichment of our imagination power, and this enrichment of imagination power leads to creative work, very rich creative work. So these are the benefits which we have discussed in the previous class, and now we see that it's not that diversity has only benefits. Actually, if we are living in a diverse society, if our society is full of diversity, then this diversity leads to discrimination. हमारी सोसाइटी में अब डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है. डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर करना, टू ट्रीट पीपल in a different manner, to not treat people in an equal manner. When we treat people differently, like people who speak a particular language are given priority over other people who do not speak that language. तो this is diversity. जैसे अगर हम इंग्लिश बोलने वाले लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रायोरिटी इन द सेंस कि हम उनको ज़्यादा समझते हैं कि वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, और जो कोई दूसरा कोई है जो कि अपना मदर टंग बोल रहा है तो हम उसको इन्फीरियर समझ रहे हैं. तो दिस लीड्स टू prejudice, and this prejudice leads to stereotype, and this stereotype leads to discrimination. अभी हम लोग इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे, है ना. बहुत सारे न्यू टर्म्स आपको सुनने से थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी ना, क्या क्या है ये सब चीज़ें. हमने इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था. वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन अबाउट प्रेजुडिस, है ना. सबसे पहले हम प्रेजुडिस को समझेंगे, प्रेजुडिस क्या होता है, और जब हम प्रेजुडिस को समझ लेंगे तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे. आगे जो न्यू टर्म्स आएंगे उनको समझते जाएंगे, तो फिर हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे डाइवर्सिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को लीड करता है. ओके, तो सबसे पहले हमें प्रेजुडिस को समझना है, जिसके बारे में हमने बात की थी इन द प्रीवियस क्लास. इन द लास्ट क्लास व्हेन योर वेकेशंस वर स्टार्टेड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस प्रेजुडिस. प्रेजुडिस इज judging someone, judging other people negatively or see them as inferior. जब हम बाकी लोगों को negatively जज करते हैं, और obviously जब हम किसी को negatively जज करेंगे तो हम उसको क्या मानेंगे, inferior मानेंगे, है ना. तो so what is prejudice? Prejudice is to judge other people negatively and see them as inferior. लाइक हम सपोज जो लोग कोई एक रिलीजन को मानने वाले हैं, जैसे हिंदू की बात अगर हम करें तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ठीक है. अब ये हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं हिंदूज, दे मे हैव दिस प्रेजुडिस कि उनका जो रिलीजन है वो बेस्ट है,
उनके अलावे जो रिलीजन दूसरे हैं वो हमारे रिलीजन के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अदर पीपल मतलब पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन आर सीन एज inferior by the Hindus. This is prejudice. ये सिर्फ हिंदू नहीं, कोई भी रिलीजन, मोस्टली जो कॉमन परसेप्शन होता है, जो कॉमन पीपल होते हैं वो इसी तरह से सोचते हैं कि हम जिस भी धर्म में हमने बर्थ लिया है या जिस जाति में या जिस लैंग्वेज को बोलते हैं हम, दैट इज द बेस्ट, और दूसरों को हम नेगेटिवली जज करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि इस तरह का जो हमारा जजमेंट बन जाता है कि जो दूसरे लोग हैं, यानी जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, दूसरी लैंग्वेज को बोलने वाले हैं या दूसरे कल्चर के लोग हैं, दूसरे रीजन में रहने वाले लोग हैं, वो हमसे इंफीरियर हैं। ये जो सोच हमारी, ये जो प्रेजुडिस हमारी बन जाती है, ये हम बनाते नहीं हैं। वी आर नॉट कॉन्शियसली डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ थॉट। ये अनकॉन्शियसली ये सब चीजें होती हैं क्योंकि हमारी जो चारों तरफ का जो माहौल होता है, इन द एटमॉस्फेयर इन द फैमिली, द एटमॉस्फेयर इन द सोसाइटी, एक्चुअली दैट एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज प्रेजुडिसेस। ये प्रेजुडिसेस लेके हम पैदा नहीं होते हैं। वी डोंट टेक बर्थ विथ दीज प्रेजुडिसेस। जो भी प्रेजुडिस हमारे दिमाग में है वो हमें इस सोसाइटी ने दिया है, हमें हमारी फैमिली ने दिया है। जेंडर को लेकर, लाइक जो गर्ल्स होती हैं वो इंफीरियर होती हैं, वो ऐसा माना जाता है। कई सारे लोग इस तरह के व्यूज रखते हैं। हम भी उनके अपने, अगर हमारे चारों तरफ का वही माहौल है तो हम उनके उस व्यू को हम अपने आप के अंदर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता। वी आर नॉट नोइंग दैट वी आर हैविंग सच थॉट। बात समझ में आ रही है? इसी को प्रेजुडिस कहते हैं कि हमने किसी के बारे में कुछ धारणा बना ली, कुछ सोच बना ली, लेकिन वो जो सोच हमने बनाई उसके लिए न तो हमने उसको देखा है कि हाँ सही में ऐसा होता है, बस हमने सुनी सुनाई बातों पर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, सुनी सुनाई बातों पर, सुनी सुनाई जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, हमारी फैमिली, हमारे नेबरहुड, हमारी सोसाइटी में जो बातें होती हैं उसके बेसिस पे ये जो सोच है वो हमारी फॉर्म कर जाती है, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है। रीजन मतलब बुद्धि, कोई उसके पीछे कारण नहीं होता है। देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट। विदाउट एनी रीजन हम इस प्रेजुडिस को अपना लेते हैं, है ना। तो इसीलिए ये इसको हमने लास्ट क्लास में ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था, और हमने ये कहा था ना किस तरह से जैसे रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए बहुत तरह के प्रेजुडिसेस उनके दिमाग में हैं। इसी तरह से जो अर्बन एरियाज में रहने वाले हैं वो रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत सारे प्रेजुडिस उन्होंने भी पाल रखे हैं, जो कि हर समय सही हो ऐसी जरूरी नहीं है। कई बार वो गलत होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे गांव के जो लोग हैं, रूरल पीपल हैं, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि शहरों में जो लाइफ होती है ना बहुत इजी होती है, लोग बिल्कुल लेजी होते हैं शहर के लोग। बट ये सच नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन सिटीज एंड वी अंडरस्टैंड हाउ टफ आवर लाइफ इज। तो अगर कोई ये सोचता है, अगर रूरल पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट द लाइफ इन द सिटी इज वेरी इजी एंड पीपल आर लेजी, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो इस तरह के बहुत सारे प्रेजुडिसेस हैं गांव में शहर के लोगों के बारे में, और इसी तरह से शहर के लोगों में गांव के लोगों के लिए। तो ये प्रेजुडिसेस के पीछे कोई भी रीजन नहीं होता है, ये सुनी सुनाई बातों पे हम बिलीव करने लगते हैं। ठीक है, इन सबको हमने डिस्कस किया था। जैसे गांव के लोगों के बारे में ही एक प्रेजुडिस होते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं, दे डू नॉट प्रेफर, दे डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इसमें मैंने आपको बताया था, इट्स नॉट लाइक दैट, दे विल यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्यों नहीं यूज करेंगे? वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। उनको यूज करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वही नहीं है, तो हाउ विल दे यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी? दे आर नॉट अगेंस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो शहर के जो लोग हैं, पीपल हु लिव इन सिटीज, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट रूरल पीपल डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऐसी बात नहीं है। अगर उनको सही तरीके से चीज़ों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो दे विल यूज।
उनको अगर सारे जो भी सुविधाएं हैं वो अगर उनको अवेलेबल कराया जाएगा तो दे विल यूज़ दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना। तो यही हम प्रेजुडिस होता है जिसमें कि हम किसी और को इन्फीरियर मानने लगते हैं, है ना, और अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं, बाकी लोगों को इन्फीरियर समझ रहे हैं, ठीक है। तो इट इज जजिंग अदर्स निगेटिवली। इसमें एक एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया है वो लैंग्वेज को लेकर है। जैसे कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर देन इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश इज बेस्ट लैंग्वेज, English is the best language and other languages are not important. So in this kind of thinking, if we are having, if we are keeping this type of thinking, it means that we are judging other languages negatively. We are judging languages other than English negatively. English के अलावे जो भी language है हम उसको निगेटिवली जज कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर हम ये माने कि इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द आउटकम। अगर हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इंग्लिश ही बेस्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश के अलावे जो लैंग्वेज है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आउटकम यही होगा कि आउटकम मतलब रिजल्ट, इसका रिजल्ट इस तरह की थॉट जब होगी तो इसका रिजल्ट यही होगा कि जो अदर पीपल अदर लैंग्वेज बोलने वाले हैं हम उनको निगेटिवली जज करना शुरू कर देते हैं। और ये कैसे हमें दिखता है, ये हमें उस समय दिखता है जब हम उन लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो कि अदर लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। So this prejudice कि English is the best language and other languages are not important, this prejudice lead to non-respect of those people who speak languages other than English, ठीक है। ये सोच जो हमारी है, ये सोच दिमाग में हमारी थी, जब इस तरह की चीज़ें हमारे सामने होती है, कुछ एक है जो इंग्लिश में बोल रहा है, कुछ दूसरे लोग जो हैं वो इंग्लिश में नहीं बोल रहे, तो हम जो इंग्लिश में नहीं बोलने वाले उनको हम उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितना हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं जो इंग्लिश में बोलने वाले। दिस इज द आउटकम ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस के कारण हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है लोगों के साथ, हम एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं, हम इंग्लिश बोलने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोलने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, ये है डिस्क्रिमिनेशन। सो इन दिस वे जो प्रेजुडिस होता है वो इस तरीके से काम करता है। प्रेजुडिस होने के कारण हम लोगों के साथ अलग अलग बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, सबको एक जैसा नहीं मानते, कुछ को हम इन्फीरियर मानते हैं, कुछ को हम सुपीरियर मानते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में इट इज ओनली एग्जिस्टिंग इन आवर माइंड, इट हैज नो बेस, इट हैज नो रीजन, जस्ट it is existing in our mind, and because of that thought we start behaving differently with people. We give respect to some people, we do not give respect to some people. So this is discrimination, इसी को हम discrimination कहते हैं। और ये prejudice के पीछे जब कोई रीज़न नहीं है, जब कोई बेस नहीं है, तो फिर ये आया कहाँ से हमारे दिमाग में? ये हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली आ जाता है हमारे चारों तरफ के माहौल से, एटमॉस्फेयर से, जो हम अपने फैमिली में पाते हैं, जो हम अपने नेबरहुड में पाते हैं, अपने स्कूल्स में पाते हैं, अपने सोसाइटी में पाते हैं। ऑल दोज एनवायरनमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेजुडिस, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये जो प्रेजुडिस है वो कई सारी बातों को लेकर हो सकता है, जैसे अभी हमने एक रिलीजन की बात की, हमने लैंग्वेज की बात की, इसी तरह से वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स लाइक कलर ऑफ द स्किन ऑफ द पीपल। मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि पीपल गिव मोर importance, more respect to those people whose color of the skin is fair, and the people who are black, they are not given respect by others.
तो दिस प्रेजुडिस इज बिकॉज ऑफ कलर ऑफ द स्किन, और ये बहुत इसकी पुरानी हिस्ट्री है। ऐसे मत समझिए कि ये कोई बहुत ही छोटी सी बात है। इस कलर ऑफ द स्किन को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हिस्ट्री में, और आज भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि टुडे वी आर फ्री ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। स्टिल टुडे दिस काइंड ऑफ जो अनफेयर ट्रीटमेंट है वो चलता आ रहा है सोसाइटी में, चाहे वो कहीं की भी सोसाइटी हो, ना सिर्फ हम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, इट इज हैपनिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, बट इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये प्रेजुडिस जो है वो कई सारे रीजन से हो सकता है। जो इंसान जिस लैंग्वेज को बोल रहा है, उस लैंग्वेज को लेकर, जिस रिलीजन को वो फॉलो करता है, उस रिलीजन को लेकर, जो उसकी स्किन का कलर है उसको लेकर, या फिर उसका जो एक्सेंट है, बोलने का जो एक्सेंट है, वो दैट ऑल्सो बिकम्स दिस रीजन फॉर प्रेजुडिस। लाइक हिंदी ही बोले कोई, लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर रीजन से, जैसे गुजरात के जो लोग हैं, अगर वो हिंदी बोलेंगे तो उनके हिंदी बोलने का जो एक्सेंट होगा वो डिफरेंट होगा, और जो नॉर्थ इंडियन हिंदी बोलेंगे उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा। तो ये जो एक्सेंट जो अलग होता है, जैसे साउथ इंडियन वो जब हिंदी बोलते हैं तो उनका हिंदी बोलने का जो उसमें एक्सेंट हो रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो क्या होता है, कई बार यू मस्ट बी डूइंग दिस। हम आप आई डू नॉट पर्सनली, आई डू नॉट डू दिस, बट ऐसा करते हैं लोग, ये बहुत नॉर्मल है। कोई इस तरीके से बोल रहा है, हिंदी ही बोल रहे हैं, चाहे इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज जो हम समझ रहे हैं, हमारी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, बट दूसरे रीजन के हैं, वो दूसरे लैंग्वेज के हैं, तो उनका जो एक्सेंट पड़ रहा है वो डिफरेंट पड़ रहा है, तो उसका लोग मजाक करते हैं ना। तो ये जो मजाक हम कर रहे हैं, ये क्या है, ये प्रेजुडिस है, क्योंकि हम उनको इंफीरियर समझ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली विद देम, है ना। तो दिस ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द रीजंस फॉर हैविंग प्रेजुडिस। इसके अलावा क्लोथ्स, कपड़ों पर भी जैसे जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं वो डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं, तो उसको लेकर के भी क्या होता है, बहुत तरह तरह के हमारे मन में अजीब सी धारणाएं होती हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं, और ये सारा कुछ जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर को हमारे रीज़न बनता है। इसी कारण से हम उनके साथ डिफरेंट बिहेवियर करते हैं, है ना। सो और ये होता है कि हमारा जो प्रेजुडिस होता है, ये जो प्रेजुडिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो धारणाएं जो दिमाग में हमने अपनी सोच बना रखी है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले लोग ऐसे होते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग ऐसे होते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोग ऐसे होते हैं, ये जो प्रेजुडिस हमारे दिमाग में इतना स्ट्रांग होता है ना कि कई बार हम सिर्फ इस रीजन से, इस कारण से हम उनसे फ्रेंडशिप तक नहीं करते हैं कि वो दूसरे धर्म को मानने वाला है, वो दूसरी लैंग्वेज को बोलने वाला है, या वो किसी ऐसे रीजन को बिलोंग करता है। रीजन मतलब जगह, प्रांत, प्लेस, है ना। इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू मस्ट ये है रीजन, कारण जिसको कहते हैं ना। और अभी जो मैंने कहा वो क्या है, रीजन इज प्लेस, है ना। तो कई बार हम इस कारण मतलब ये जो प्रेजुडिस होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि इस प्रेजुडिस के कारण हम उनके साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करते, है ना। और उनकी मजाक उड़ाते हैं कि वो डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट तरीके के एक्सेंट में बोलते हैं, तो इसके लिए हम उनका मजाक उड़ाते हैं। तो अगर हम किसी के साथ इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, उनको बहुत बुरा लगेगा, है ना। दे फील डिस्क्रिमिनेटेड कि हमारे साथ और लोगों के जैसा बिहेव नहीं हो रहा, इक्वल टर्म्स में नहीं बिहेवियर हो रहा है, हमें नीचा माना जा रहा है, लोग हमारा मजाक कर रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सोसाइटी के लिए हमारे अच्छी नहीं होती हैं। जस्ट अगर किसी का भी हम जब भी मजाक कर रहे होते हैं किसी के इन चीज़ों को लेकर कि वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, उसका धर्म ये है, वो इस रीजन को बिलोंग करता है, तो हम उसकी जगह अपने आप को रख के हमें सोचना चाहिए, है ना। कि अगर कोई हमारे साथ, हम भी अगर किसी दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग जो होंगे दूसरे तरह के धर्म को मानने वाले हैं, हमारा धर्म दूसरा है, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे कहीं अगर हम दूसरी जगह जाते हैं और हमारे साथ ऐसा बिहेवियर होगा, तो हमें
कैसा लगेगा, है ना। जब हम इस तरह से सोचेंगे तो फिर हम नहीं खराब बिहेव करेंगे, है ना। तब हम उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता है। जो सोसाइटी है उसमें प्रेजुडिसेस हैं, लोग इस तरह के विचारों को, धारणाओं को रखे हुए हैं, एंड दिस प्रेजुडिस लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। अब इसी में एक नया टर्म आपको समझना है आज, और वो है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप जो है वो प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, ये दोनों बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। स्टीरियोटाइप, ठीक है। स्टीरियोटाइप का जो मीनिंग है उसका ये मतलब है कि हमने क्या किया कि ये दिस स्टीरियोटाइप इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, ठीक है। ये जो स्टीरियोटाइप होता है ये सोसाइटी क्रिएट करती है, और इसका ये मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल जो हैं उनको एक, उनके लिए एक इमेज हमने फिक्स कर दिया कि वो ऐसे ही होते हैं। दिस इज स्टीरियोटाइप। I will explain you with examples, then you will be able to understand this, ठीक है। सबसे जो चीज़ है ना कि क्या है कि कुछ लोगों को, जैसे किसी बॉयज़ के बारे में या गर्ल्स के बारे में, जेंडर के बेसिस पे ही हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। जेंडर के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, जो सोसाइटी है उसने एक इमेज फिक्स कर दी कि लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे लड़कियों को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, धीमे बोलने वाली। अगर कोई लड़की बहुत कड़े आवाज में, बहुत तेज आवाज में बोलती है तो इसको खराब माना जाता है। हो सकता है सब लोग नहीं मानते होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन थिंक्स लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ दिस ओपिनियन कि लड़की है तो आपको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, लड़की है तो आपको ड्राइंग में, आर्ट में आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। लड़की है तो आपको डांस भी आना चाहिए, बिकॉज यू आर अ गर्ल, है ना। तो गर्ल है तो आपको डांस अच्छा होना चाहिए, ड्राइंग में, पेंटिंग में अच्छा होना चाहिए, और कुकिंग भी अच्छी आनी चाहिए आपको, बिकॉज यू आर अ गर्ल, है ना। और लड़कियां बहुत इमोशनल होती है, तुरंत रोने लग जाती हैं लड़कियां। ये क्या है? दीज आर स्टीरियोटाइप्स, these are a particular type of behavior which the society expect from the girls। ये समाज जो हमारे चारों तरफ है, ये सोसाइटी का ये एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी ये उम्मीद करती है एक लड़की से कि उसको ऐसा ही होना चाहिए, उसको कुकिंग आनी चाहिए, उसको पेंटिंग आनी चाहिए, उसको डांस में अच्छा होना चाहिए, उसको इमोशनल होना चाहिए, है ना, उसको वेल बिहेव्ड होना चाहिए, उसको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। जब से एक लड़की का बर्थ होता है तो वो इसी तरह की बातें सुनती है, लड़की हो और ऐसे करती हो, लड़की हो और तुम्हें पेंटिंग करनी नहीं आती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इस तरह की बात सुनते हैं और सपोज हमें पेंटिंग नहीं आती, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन पेंटिंग, एंड पीपल आर सेइंग, पीपल अराउंड मी आर सेइंग कि लड़की हो और पेंटिंग नहीं आती है तुम्हें। तो ये जो बोला जा रहा है कि लड़की हो और तुम्हें पेंटिंग नहीं आती है और मुझे नहीं है इंटरेस्ट पेंटिंग में, तो ये मेरे अंदर क्या डेवलप करेगा, इन्फीरियोरिटी डेवलप कर देगा ना, कि मैं एक सही लड़की नहीं हूँ, सोसाइटी के हिसाब से मैं नहीं हूँ, तो मुझ में कुछ डिफेक्ट है ना। तो ये है स्टीरियोटाइप, जिसमें कि आपके लिए एक इमेज फिक्स कर दिया गया कि अगर आप गर्ल हैं तो आपको ऐसा ही होना चाहिए, अगर आप बॉय हैं तो आपको स्पोर्ट्स में बहुत तेज होना चाहिए, अगर आप बॉय हैं तो आपको रोना नहीं है, बॉयज डू नॉट क्राई, है ना। बॉय हैं तो आप राउडी हो सकते हैं, बॉय हैं तो आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
ये सब समाज इसको क्रिएट करता है। कोई ऐसा बॉयज भी तो रोते हैं, क्यों नहीं रोएंगे? जिसको भी पेन होगा वो रोएगा। क्यों? बॉय है तो उसको दर्द नहीं होगा? किसी भी तरह का मेंटल फिजिकल पेन अगर होगा तो हर कोई रोएगा। जेंडर हैज नथिंग टू डू अबाउट इट, बट सोसाइटी ये हम पे प्रेशर डालता है। और अगर कोई लड़का रोता है तो उसको क्या लगेगा? उसको लोग कहेंगे क्या? फैमिली मेंबर्स दे विल से, अरे लड़का होके रोते हो? हाँ, लड़के रोते हैं कहीं? लड़का होके रो रहे? अब उसके अंदर वो एक इमेज जो सोसाइटी ने बना दी है लड़कों के लिए, वो उस इमेज में फिट नहीं हो पा रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि उस लड़के के अंदर इंफीरियोरिटी आ जाएगी, उसके मन में ये आ जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बट he will start thinking कि there is some defect in him. ये क्या है? ये stereotype. So this is the stereotype. So we will continue with this discussion in the next class.